Good afternoon, friends. This video to highlight important changes as recommended by GST Council in their 45th GST Council meeting held on 17 September 2021. First one, recommendation on GST law and procedure. First, ITC 04. When registered person is sending raw material and capital goods on a job work challan to a job worker, he is supposed to file quarterly return. Now it is being recommended registered person having aggregate turnover more than 5 crore in a preceding financial year. Now he has to file once in a 6 month. So it's changing from quarterly to once in a 6 month for those whose aggregate turnover is more than 5 crore in preceding financial year. और जिसकी 5 करोड़ से नीचे है, once annually. Second change, the laudable change, interest to be charged for the net tax liability to be paid in cash, and that too retrospectively from July 1, 2017. This change was made under section 50 subsection 1 of CGST Act. Now it is being recommended that they are going to make the similar change under section 50 subsection 3 with retrospective date July 1, 2017, and interest to be charged only on net cash tax liability. So this is the laudable change, but the important one, and this is going to be levied, interest going to be levied only when a taxpayer is availing and utilizing ineligible input tax credit. So meaning thereby, अगर आपने ineligible credit availed की but utilize नहीं किया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा. ये तभी लगेगा जब आपने इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड की है और यूटिलाइज्ड की है retrospectively, laudable one from July 1, 2017. This change we have discussed in past. हमने कई वीडियो बनाए और उसमें डिस्कस भी किया. It's a good change and that must be complimented. Having said that, here one more important point to highlight. अब इनने कहा retrospectively. Interest लगेगा at the rate of 18% per annum only when जब आपने ineligible credit availed की और utilized की. ऐसे केस में जहां आपने ऑलरेडी इंटरेस्ट या तो हायर रेट पे कर दिया 24% पे, या डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस दे दी कि आपने अवेल्ड किया है इनएलिजिबल क्रेडिट बट यूटिलाइज नहीं किया, और हो सकता है आपने इंटरेस्ट पे कर दिया हो, तो उसका क्या होगा? इन माई कंसिडर्ड व्यू, we must file a refund claim for such interest which we have paid from our own pocket. Coming to the third point, which is important one, unutilized cash balance lying in CGST and IGST. अगर आपका unutilized cash balance CGST और IGST में खड़ा है, now you can transfer this cash balance from one distinct person to another distinct person under same PAN number. And distinct person means अगर मान लीजिए मेरी 4 रजिस्ट्रेशन 4 स्टेट में है, वी आर डिस्टिंक्ट पर्सन, और एक रजिस्ट्रेशन में मान लीजिए आपके पास CGST एंड IGST कैश बैलेंस पड़ा हुआ है. सो इंस्टेड ऑफ क्लेमिंग रिफंड, अब आप क्या कर सकते हैं, जो आपका कैश बैलेंस अनयूटिलाइज बैलेंस CGST और IGST में पड़ा हुआ है
उसको आप एक डिस्टिंक्ट पर्सन फ्रॉम वन रजिस्ट्रेशन टू अनदर रजिस्ट्रेशन अंडर सेम पैन नंबर ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी रिफंड के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है। द गुड चेंज, लाउडेबल चेंज। कुछ सर्कुलर अब इशू किए जाएंगे एंड सर्कुलर पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि इंटरमीडियरी सर्विसेज एंड इंटरमीडियरी पे आपको मालूम है लॉट ऑफ डिस्प्यूट वेदर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होगी या नहीं होगी, बिकॉज इंटरमीडियरी के लिए लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया होती है और प्लेस ऑफ सप्लाई अगेन लोकेशन ऑफ सप्लायर होती है डिस्प्यूटेड। गुजरात हाई कोर्ट ने तो ऑलरेडी जजमेंट दे दिया है कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लॉज बी के हिसाब से ये एक्सपोर्ट नहीं है ऑफ IGST एक्ट। बट बॉम्बे हाई कोर्ट इन द केस ऑफ धर्मेंद्र एम जानी केस, जहां दो जजेस ने डिस्टिंक्ट अपने व्यूज दिए एंड मैटर इज स्टिल सब जुडिस, सो दिस रिकमेंडेशन बाय GST काउंसिल that they are going to issue a circular intermediary के लिए, and we all are saying that export of services should be considered on the basis of destination based consumption tax. So intermediary providing services from India to outside India, it should be considered export of services. Let's wait and watch. It is being considered by GST Council. Now they are going to issue a clarification by way of circular on intermediary services. दूसरा उन्होंने ये कहा कि सर्कुलर इशू करेंगे एंड ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में कंडीशंस हैं। कब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होगा? सप्लायर इंडिया में हो, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया हो, आपकी पेमेंट कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आ गई हो, और उसमें एक कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि दे शुड नॉट बी मेयरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई मस्ट बी आउटसाइड इंडिया। सो कई बार डिस्प्यूट ये होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेयरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन? सो GST काउंसिल हैज रिकमेंडेड, they are going to issue a circular, and circular is saying, and the recommendation which is saying, which is going to be clarified by way of circular, अगर आपका सप्लायर इंडिया में है और उसने कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन लिया है, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है और उसने भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन अंडर एनी लॉ ऑफ दैट कंट्री लिया हुआ है, they will be considered separate person and will not be considered merely establishment of distinct person. Like अगर होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है और आपकी रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया वहां के लॉ के हिसाब से रजिस्टर्ड है, they would be separate and will not be considered as a merely establishment of distinct person, so as it is bar कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज नहीं है। यानी इसको क्लैरिफाई कर दिया कि मेयरली एस्टैब्लिशमेंट जो एक बार है, एक कंडीशन है फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, विल नॉट बी कंसीडर्ड व्हेन बोथ आर सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर रिस्पेक्टिव लॉ ऑफ दैट कंट्री। हैविंग सेड दैट, नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन उन्होंने दिया, नेक्स्ट रिकमेंडेशन ये है कि जो डेबिट नोट हम GST में इशू करते हैं for availing credit, and there's a time limit under section 16 subsection 4 of CGST Act, time limit। डेबिट नोट आप subsequently इशू करते हैं, तो कई बार डिस्प्यूट होता है डेबिट नोट इशूड विथ रेफरेंस टू अंडरलाइंग इनवॉइसेस। तो लिटिगेशन भी मार्केट में बहुत हो रहे हैं कि अगर डेबिट नोट किसी अंडरलाइंग इनवॉइसेस के रेफरेंस में अगर इशू किया गया है, तो डिपार्टमेंट का ये कहना है कि टाइम लिमिट कैलकुलेट करने के लिए फॉर अवेलिंग क्रेडिट अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, they will look at the date of underlying invoices. Now it is being recommended, clarified from 1st of January 2021 जो डेट ऑफ issuance of debit note होगा, that would be relevant. So they are delinking
with reference to the date of underlying invoice, यानी जो डेट आपकी डेबिट नोट की होगी उसी को माना जाएगा, and that will be considered effective from 1st of January 2021 for availing ITC under section 16 subsection 4, जिसमें टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है for availing credit. So this is the next laudable one. Now another change which they have suggested, when we are exporting goods and these goods are subject to export duty, या आपने कुछ पोर्शन उस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी पे की है, दैट इज डी बार. यू कैन नॉट go for refund of accumulated ITC on export of such goods subject to export duty under section 54 subsection 3 of CGST Act. And the next one, CGST rules may now they are going to make change pertaining to time limit and procedure. They are going to prescribe, जब आप कोई ट्रांजेक्शन मान लीजिए इंट्रा स्टेट आपने ट्रीट किया, CGST SGST पे भी कर दिया, बट लेटर ऑन यू रियलाइज कि ये इंट्रा तो है ही नहीं है, ये तो इंटर स्टेट है, IGST लगना था और वाइसे वर्सा. तो कई बार डिस्प्यूट हो रहा था क्या टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड होगी, 2 साल 2 years as given under section 54 of CGST Act, और प्रोसीज्योर क्या होगा for claiming the refund. मान लीजिए आपने इंट्रा ट्रीट किया, CGST SGST पे कर दिया, बाद में मालूम पड़ा कि ये तो इंटर है, IGST पे करना है, तो आप IGST पे करेंगे और जो आपने पे कर दिया CGST और SGST उसका रिफंड चाहिए. रिफंड के लिए टाइम लिमिट क्या होगी और प्रोसीज्योर क्या होगा. टाइम लिमिट पे डिस्प्यूट था कि 2 साल, और प्रोसीज्योर क्या होना चाहिए. GST काउंसिल ने कहा फॉर टाइम लिमिट एंड प्रोसीज्योर फॉर क्लेमिंग रिफंड ऑफ रॉन्गली पेड टैक्सेस अंडर सेक्शन 77 सबसेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट, रेट बिट सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 ऑफ IGST एक्ट, दे आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब कि क्या टाइम लिमिट होगी और क्या प्रोसीज्योर होगा. गुड एंड लाउडेबल वन. मैंने अपनी हम्बल सबमिशन आपके सामने पास्ट में भी रखी है, फिर रिपीट कर रहा हूं. 2 years टाइम लिमिट is not applicable for claiming of this wrongly paid taxes. Let's wait and watch. The corresponding change is going to be prescribed. Having said that, अब दूसरे टॉपिक पे आता हूं. Streamlining compliance under GST. So certain recommendation जिसमें compliance related GST काउंसिल ने रिकमेंडेशन दिए. पहला, आधार ऑथेंटिकेशन इज ए मस्ट फॉर फाइलिंग रिफंड क्लेम एंड फाइलिंग रिवोकेशन एप्लीकेशन ऑफ कैंसिल GST रजिस्ट्रेशन. यानी आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवानी पड़ेगी अगर आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं या फिर आप रिवोकेशन एप्लीकेशन फॉर कैंसिल रजिस्ट्रेशन अगर आप डाल रहे हैं. सेकंड चेंज, अगर आपने GSTR 1 लेट भरा, उस पर लेट फीस एप्लीकेबल है. नाउ दिस इज गोइंग टू बी ऑटो पॉपुलेटेड इन योर नेक्स्ट मंथ GSTR 3B. That's what it is being recommended by GST Council. Third, Rule 59 Sub-Rule 6 of CGST rule, very very important. 1 September 2021 से इस रूल में ये कहा गया कि अगर आपने प्रीसीडिंग 2 मंथ का अगर GSTR 3B नहीं भरा तो आप उसके बाद GSTR 1 अपना नहीं भर पाएंगे. अब क्या चेंज आने वाला है, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट यू मस्ट नो. What is being recommended by GST Council? GST Council ने ये कहा, now this is going to be again amended from 1st of January 2022. उन्होंने कहा कि अगर आपने प्रीसीडिंग मंथ का अगर GSTR 3B नहीं भरा तो आप नेक्स्ट मंथ में GSTR 1 नहीं भर सकते.
यानी 2 मंथ का जो क्राइटेरिया था दैट इज नाउ गोइंग टू बी ओनली 1 मंथ। प्रिसीडिंग मंथ का अगर 3 भी आपने नहीं भरा है तो आप GSTR1 नहीं भर सकते। एंड दिस चेंज इज गोइंग टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2022। एक जो इंपॉर्टेंट चेंज आया और हम सब लीगल पॉइंट पे डिबेट करते हैं, फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इन GST अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 4 कंडीशन है। एज ए बायर आपके पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए। You must have received goods or services. Your supplier must have paid taxes, and being recipient, you are regularly filing GST return. एक सब क्लॉज AA, 5th condition under section 16 subsection 2 inserted by finance bill 2021। और वो सब क्लॉज AA क्या कहता था कि जिस इनवॉइस और डेबिट नोट पे बायर क्रेडिट ले रहा है, दैट इनवॉइस एंड डेबिट नोट मस्ट बी फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन इट GSTR1 एंड इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द रिसिपिएंट। तो हमने इंटरप्रिटेशन ड्रॉ किया और हमने कहा जो रूल 36 सब रूल 4 ऑफ CGST रूल्स है, जिसमें रेस्ट्रिक्शन है फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सच इनवॉइस एंड डेबिट नोट, जो सप्लायर ने अपने GSTR1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के जरिए नहीं दिखाया है, एंड कैपिंग दे हैव प्रिस्क्राइब 5%, ओनली 5% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट कमिंग इन GSTR2A। नाउ दे आर सेइंग, एंड वी हैव सेड इन द पास्ट with introduction of section 16 subsection 2 subclause AA yet to be notified, और ये prospective clause है that cannot be applied retrospectively, and I have made video and presented before you कि 2A और 2B का कोई relevance नहीं है जब तक कि ये subclause AA notified नहीं होता। Rule 36 sub-rule 4 is ultra vires. It is being challenged in different high court. Now GST Council has recognized this problem, and now they are saying they are going to amend Rule 36 sub-rule 4 with respect to this subclause AA, which is inserted under section 16 subsection 2 by Finance Bill 2021 laudable one। तो मैंने आपको दो बड़े बड़े चेंजेस बताए। अब मैं लेके जाता हूं जो GST रेट रिकमेंडेशन ऑन गुड्स और सर्विसेज। पहला, जो कोविड ट्रीटमेंट ड्रग्स हैं, कोविड ट्रीटमेंट ड्रग्स जिसकी लास्ट डेट फॉर जहां पे कंसेशनल रेट को कम किया गया था, बेनिफिट दी गई थी, दे आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस date of 30th September 2021 to 31st December 2021। यानी जो भी कंसेशनल रेट रिडक्शन हुई थी, रिड्यूस हुई थी फॉर कोविड ट्रीटमेंट ड्रग्स, उसकी वैलिडिटी अब 31st दिसंबर 2021 तक होगी। कुछ और कोविड ट्रीटमेंट ड्रग्स हैं जिनके रेट रिड्यूस किए गए हैं, एंड दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एप्लीकेबल till 31st December 2021। गुड वन। नेक्स्ट, कई ऐसे गुड्स हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स हैं, 14 आइटम। आप प्रेस रिलीज देख लें, मैं अपने कमेंट बॉक्स में प्रेस रिलीज की लिंक दे रहा हूं, आप उसे डाउनलोड कर लें। 14 ऐसे आइटम हैं सप्लाई ऑफ गुड्स के जिस पे GST रेट चेंजेज होंगे, एंड चेंजेज गोइंग टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 1st of October 2021 unless otherwise stated। यानी नॉर्मली उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2021 से चेंज होंगे, अदरवाइज अगर स्टेट किया गया है तो उस डेट से चेंज होंगे। 14 ऐसे आइटम हैं, मैं सारे स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं कर रहा, बट जस्ट टू हाईलाइट, लोकोमोटिव पार्ट्स रेलवे के जो चैप्टर 86 में आते हैं, rate is changed from 12% to 18%। all kind of pens, बॉल पॉइंट पेन जो 12% है, उनने कहा भी 18% हो जाएगा। So these are the some of the changes
14 ऐसे गुड्स हैं जिस पे उनने जीएसटी के रेट चेंज किए, बट इंपॉर्टेंट जो मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट करना चाहता हूं, ऐसे भी कई आइटम हैं जिसमें जीएसटी के रेट कम किए गए हैं। मान लीजिए 12 था, 5% हो गया। यू जस्ट हैव ए लुक एट दैट पर्टिकुलर लिस्ट इन प्रेस रिलीज। जब कम हो गया तो एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो आ रही है वह इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की। आपने हो सकता है कि 18% या 12% पे मान लीजिए गुड्स परचेज किए थे, अब उसकी रेट मान लीजिए 5% हो जाती है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021, तो आपके पास एक्यूमुलेशन ऑफ क्रेडिट खड़ा हो जाएगा। तो आप आफ्टर 1 अक्टूबर 2021 तो 5% पे बेचेंगे, और परचेज पे आपने या 18% दे रखा है या 12% दे रखा है, तो उस एक्यूमुलेटेड क्रेडिट का क्या होगा? क्या मुझे रिफंड मिलेगा? अंडर आईडीएस डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर इशू कर रखा है। उस सर्कुलर के तहत वो कहते हैं ट्रेडिंग ऑफ सेम आइटम हम आपको आईडीएस का रिफंड नहीं देंगे, विच इज द डिस्प्यूटेड वन। इन माई कंसिडर्ड व्यू मुझे बिल्कुल रिफंड ऑफ आईडीएस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट द मीनिंग इज कमिंग आउट। जस्ट टू हाईलाइट, आईडीएस में इनपुट सर्विस का रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा? Now Honorable Supreme Court has said that input service का रिफंड आपको आईडीएस में नहीं मिलेगा। Having said that, सर्विसेज के ऊपर भी इन्हें जीएसटी के रेट चेंज किए हैं। 9 ऐसे आइटम है या 9 आइटम जिस पे जीएसटी रेट चेंज किए गए हैं। रिकमेंडेशन है गोइंग टू बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021 unless otherwise stated. You may look at the press release which is mentioned in the comment box. You can download and check those items, respective item, which changes are being recommended by GST Council. 2-3 important change जो उन्हें अनाउंस किए, लाइक मेथा ऑयल अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेते हैं तो आरसीएम की लाइबिलिटी आएगी, और अगर आप मेथा ऑयल अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो कंपल्सरली आपको एलयूटी मोड में जाना पड़ेगा, जहां रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी आपको मिलेगा, यानी आप आईजीएसटी रूट फॉलो नहीं कर सकते। ब्रिक्स के लिए एक स्पेशल कॉम्पोजिशन स्कीम विद अ थ्रेशोल्ड ऑफ 20 लाख रुपीज, 6% रेट विदाउट आईटीसी, 12% रेट विद आईटीसी। गोइंग फॉरवर्ड उन्हें 1-2 चेंजेस और जो किए वो भी मैं आपके सामने नरेट कर देता हूं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट स्पेसिफाइड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, केरला हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था और जीएसटी काउंसिल से कहा था कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में लाने की बारे में जीएसटी काउंसिल को सोचना चाहिए। जीएसटी काउंसिल ने डिस्कस किया। एज यूजुअल उन्होंने कहा दिस इज नॉट द एप्रोप्रिएट टाइम, काउंसिल हैज डिसाइडेड दिस इज नॉट द एप्रोप्रिएट टाइम टू डिस्कस इंक्लूजन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। यस्टरडे आई ट्वीटेड, और ट्वीट में मैंने डाला था कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट इतना आसान नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट इंट्रा स्टेट सप्लाईज के ऊपर वैट एंट्री टैक्स चार्ज करती है, जो पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सीएसटी चार्ज करती है, जो सेंट्रल किटी का पार्ट है, बट बाय वे ऑफ डिवोल्यूशन फॉर्मूला 42% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, एंड इट्स ए बिग पाई फॉर द टैक्स रेवेन्यू फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। इट्स नॉट इजी। माई ओनली सबमिशन दैट जीएसटी काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड स्टेट मस्ट कम फॉरवर्ड, प्रोवाइड ए मैकेनिज्म। अभी कॉम्पेंसेशन सेस पे सेंटर स्टेट में सहमति नहीं बन रही है। What is being presented in yesterday GST Council meeting कि compensation cess को ये beyond जून 2022 से लेके अप्रैल 2026 तक लेके जाएंगे। कई ऑप्शन प्रेजेंट किए गए हैं, and council will decide what would be the mode of compensation cess as a way forward. But I was referring कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अगर जीएसटी में लाना है तो सेंटर और स्टेट दोनों को साथ आना पड़ेगा, and there should be appropriate mechanism कि जो स्टेट की वरी है कि मेरा टैक्स रेवेन्यू खत्म हो जाएगा, सेंटर को कुछ ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंड दे हैव टू वर्क टुगेदर, कम फॉरवर्ड।
This petroleum product is in need of manufacturing sector and service sector, creating cascading, क्योंकि आप प्री जीएसटी के टैक्सेस पे करते हैं जिसकी क्रेडिट जीएसटी में आपको नहीं मिलती। ओवरऑल जितने मेजर पॉइंट थे मैंने आपके सामने सारे डिस्कस कर लिए हैं। प्रेस रिलीज कमेंट बॉक्स में है, आप जाके प्रेस रिलीज डाउनलोड करें एंड चेक करें। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, जो रिकमेंडेशन 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसाइड हुए वो मैंने आपके सामने अपने एक ल्यूसिड मैनर में प्रेजेंट करने की कोशिश की। विद जीएसटी रिलेटेड लॉट मेनी वीडियोज वी आर मेकिंग। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल सो दैट यू गेट इमीडिएट अपडेट एंड नोटिफिकेशन जो भी वीडियो मैं बनाता हूं और अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।